اینڈ بیوریجز کی جو شعبہ ہے یا ریسٹورانٹس کا جو شعبہ ہے، اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ورلڈ کلاس ہیومن ریسورس تیار کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر اپنے کوزین کو بھی اپنی ایک پہچان بنائیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ چائنیز کوزین پوری دنیا میں چھا گیا، آپ نے دیکھا تھائی کوزین پوری دنیا کے اندر ایک سافٹ پاور بن گیا. آج پاکستانی کوزین بھی بہت پاورفل کوزین ہے، لیکن ہم نے اس کی پریزنٹیشن میں ہم نے اس کو ہیومن ریسورس کے حوالے سے اس طرح ترقی نہیں دی کہ جو پاکستانی ریسٹورانٹس اپ سکیل ریسٹورانٹس بن سکیں اور دنیا کی ہائی ریٹنگز لے سکیں. آپ آج بھی دیکھیں باہر جائیں تو زیادہ تر ممالک میں پاکستانی ریسٹورانٹ ملے گا، لیکن وہ پاکستانی ریسٹورانٹ از کیٹرنگ اونلی ٹو دا لوکل پاپولیشن، جو ایتھنک پاپولیشن ہے. اس کا جو ماڈل ہے ریسٹورانٹ چلانے کا وہ وہی ہے جو اسلام آباد میں یا لاہور میں خان چاچا ریسٹورانٹ چلانے کا ماڈل ہے کہ اس نے میز کرسی رکھنی ہے، اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے پیرس کے اندر یا نیو یارک کے اندر یا ٹوکیو کے اندر یا ہانگ کانگ کے اندر کس طریقے سے آپ نے ایک اپ سکیل ریسٹورانٹ بنانا ہے کہ جس سے لوکل کلائنٹیل بھی آ کر وہ پاکستان کے اس کوزین کو دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کرے. اسی طرح ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی اب ٹورزم جس طرح گرو کر رہا ہے، مجھے خاص طور پہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ ٹورزم کا تعلق سروس کلچر سے ہے، اور سروس کلچر میں بڑی ہیوملٹی درکار ہوتی ہے. یو ہیو ٹو میک ادر پیپل ویری اسپیشل. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جو سروس انڈسٹری ہے اس کا ایک بڑا بیسک جو کامیابی کا گر ہے وہ کرٹسی ہوتا ہے کہ آپ کس قدر کرٹیس ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ. والٹ ڈزنی اپنے امپلائیز کی ملینز آف ڈالر سے ٹریننگ کرتا ہے ہاؤ ٹو گریٹ یور کسٹمرز ود اے اسمائل. ہمارا دین کہتا ہے کہ دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، یعنی کہ اتنی ہمیں حسن خلق کے اوپر وہ دی جاتی ہے تربیت. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں پر آپ ٹیکنیکل سکلز سیکھیں وہاں پر اس پیشے کے حوالے سے ہم اپنے اندر وہ سکلز جو کیریکٹر کے ہیں، جو بیہیویئر کے ہیں، وہ بھی لے کر آئیں کہ یہ جتنی سروس انڈسٹری ہے اس میں انسان کا بیہیویئر ہی اس کی کامیابی کی کنجی ہوتا ہے. جتنے آپ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، جتنا آپ لوگوں کو اسپیشل فیل کرائیں گے، اتنے آپ کامیاب ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ گریجویشن صرف آپ کے لیے ایک سیریمنی نہیں ہے بلکہ ایک زندگی کے نئے مرحلے کا آغاز ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کانوکیشن سے خطاب جاری تھا. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے شعبے کو مزید بہتر کر رہے ہیں. بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عوامی شکایات پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کی ہدایت پر سندھ کمشنر قاسم آباد نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ نجی شاپنگ مال پر 1,20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا. حیدرآباد سے نمائندہ فائد نیوز جبران خان کی رپورٹ دیکھیے. قاسم آباد میں واقع نجی شاپنگ مال میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم آباد ہتف سیال کی کارروائی. زائد قیمتوں پر اشیاء ضروریہ اور ریڈ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر مارٹ پر 1,20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا. کارروائی کے دوران سندھ فوڈ اتھارٹی، مارکیٹ کمیٹی، بیورو سپلائی پرائسز، مختار کار عبدالعزیز جنیجو اور ریونیو کی ٹیم بھی موجود تھی. جی بالکل، ہمارے ساتھ سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم بھی شامل تھی، مارکیٹ کمیٹی کے ریپریزنٹیٹیوز بھی تھے، بیورو اینڈ سپلائی پرائسز کی طرف سے بھی، اور ڈسٹرکٹ پولیس بھی ہمارے ساتھ شامل تھی. ہم نے یہاں پر میکس بچت پر ریڈ کی ہماری ریونیو ٹیم کے تھرو، اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو اسینشیل کموڈیٹیز تھے وہ ان کو وہ سیل کر رہے تھے وہ ہائر پرائسز پہ کر رہے تھے جو گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹس تھے. اور دوسری انہوں نے آفینس یہ کیا ہوا تھا کہ وہ انہوں نے جو ریٹ لسٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی نوٹیفائڈ وہ بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی تھی. تو ان دو آفینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو 1,20,000 کی فائن کی. دوسری جانب سندھ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے مارٹ کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا، صفائی ستھرائی، زائد المیعاد اشیاء کو چیک کیا. سندھ فوڈ اتھارٹی نے بھی مارٹ پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا.
یہاں پہ ہائیجین کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی. جو اوپن آئٹم تھے ان کے اندر بالکل کورڈ نہیں تھے. ڈسٹ بنس کا کوئی نظام نہیں تھا یہاں پہ, اور اس کے علاوہ پیسٹ کنٹرول کا نظام نہیں تھا, اور فلائی کیچرز بھی نہیں لگے ہوئے تھے. اس کے علاوہ ان کے پاس MRDs مینشن نہیں تھیں, جس پہ ہم نے ان پہ 20,000 کا جرمانہ کیا ہے. شہر بھر میں انتظامیہ کی جانب سے گرہ فروش منافع خور دکانداروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد. میپو خاص میں وزیراعظم کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بیت المال کی جانب سے اہتمام رمضان کے تحت 400 افراد کے لیے نیو بس ٹرمینل پر افتتاح کا انتظام کیا گیا ہے. اہتمام رمضان موقع پر پاکستان مسلم لیگ سندھ کے نائب صدر آصف معراج راجپوت کا کہنا تھا کہ یہ اہتمام افطار کا سلسلہ 30 رمضان تک جاری رہے گا, جس میں ضلع بھر میں افطار کا اہتمام کیا جائے گا. ماہ رمضان محبتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے, اور یہی ہمیں صبر و محبت اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ایسے افراد جو ماہ سیام میں مزدور اور روزانہ دہاڑی والے افراد ہیں, ان کو افطاری کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں. اس موقع پر بیت المال کے افسران بھی موجود تھے. شیخوپورہ میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قصابوں نے چھریاں تیز کر لی. مٹن اور بیف کی قیمتوں میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا, جبکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام. شہری مہنگے داموں گوشت خریدنے پر مجبور. مزید دیکھتے ہیں محمد شیراز سندھو کی رپورٹ. شیخوپورہ میں رمضان المبارک کے ایام میں جہاں مہنگائی کا جن بے قابو ہو جاتا ہے, وہی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ قصابوں نے بھی چھریاں تیز کر لی. مٹن اور بیف کی قیمت میں 2 گنا اضافہ کر دیا گیا. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کروانے میں بری طرح ناکام. قصاب مافیا متحرک. یہ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہے, یہ کاروائی کرنے سے قاصر ہے. یہ جو بڑا گوشت ہے اس کا سرکاری ریٹ ہے 800 روپے کلو, اور یہ جو چھوٹا گوشت ہے اس کا ریٹ ہے 1600 روپے کلو, جبکہ بڑا گوشت 1100-1200 روپے کلو دے رہے ہیں, اور چھوٹا گوشت 2200-2300 روپے کلو دے رہے ہیں. اللہ کام سے ہماری اپیل ہے کہ ان قصابوں کے خلاف کاروائی کی جائے. بیف کی قیمت 800 روپے مقرر ہونے کے باوجود 1100 سے لے کر 1200 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ مٹن کی قیمت 1600 روپے مقرر کی گئی, لیکن 2200 سے لے کر 2400 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے. چھوٹے گوشت کا ریٹ ہے, سرکاری جو ریٹ ہے وہ 1600 روپے ہے, لیکن یہاں پہ جب لینے آ جائے 2200-2300 مل رہا ہے. اور جو بڑا گوشت ہے اس کا ریٹ ہے 800 روپے, اور دکاندار 1200-1300 روپے میں سیل کر رہا ہے. یہ تو غریب کی فون سے بہت دور چلا گیا نا, تو غریب بندہ کیسے کھائے گا. میں لندن سے آیا ہوں, تو وہاں پہ ٹیسکو سٹور ہے, ازدا سٹور ہے, بہت بڑا ہے, لیکن ان میں یہ ہے کہ رمضان سے 10 دن پہلے آفر لگی ہوئی ہے. آٹا سستا ہے, 12 روپے 12 پاؤنڈ کا تھا 10 کلو کا, جو 7 پاؤنڈ کا ہے. حکومت سے ہی اپیل ہو سکتی ہے, جو بھی ہو سکتی ہے, کہ بھی یہ کیا ڈرامہ ہے یہاں پہ 1600 روپے اور 2200 روپے. پہلے ہی مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے. سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مٹن اور بیف غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں پہلے ہی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. قصابوں نے بھی ریٹ بڑھا کر مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. ان کے خلاف کارروائی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. کیمرامین محمد شہزاد جٹ کے ہمراہ محمد شراز سندھو، چینل 5 نیوز، شیخوپورہ. دل کے مریض ہو جائیں ہوشیار. اسٹرابری کا پھل پک کر ہوا تیار. خریداری کے لیے ابھی چاہیے بازار, ختم ہوا اب انتظار. مزید جانتے ہیں مظفر گڑھ سے شیخ فیصل فراز کی رپورٹ میں. ذائقے میں لاجواب پھل ہے تو بے شمار, لیکن اسٹرابری جیسی بات کہاں. دیر ورائٹی کی اسٹرابری کا رنگ عروسی جوڑے جیسا سرخ اور چمکدار ہوتا ہے. اس کا رسیلا گودا منہ میں مٹھاس بھر دے, وجہ کہ لوگ خریداری کے لیے کھنچے چلے آئے ہیں. مظفر گڑھ میں کاشت ہو رہی ہے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ مقبول قلب ہے, دل کو طاقت دیتی ہے, شریانیں کھولتی ہے, اور اس کے علاوہ جگر کو فائدہ دیتی ہے, خون بناتی ہے. لہذا اسٹرابری بچے ہوں یا بزرگ ہوں یا نوجوان, سب میں بہت زیادہ مقبول ہے. موسم سرما میں کاشت کی جانے والی اسٹرابری بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے. جتنی محنت سے یہ پھل بویا جاتا ہے, اتنی ہی نفاست سے چنا جاتا ہے. اسٹرابری کو اندرون بیرون ملک فروخت کے لیے بھیجا جاتا ہے. میں کھیت میں کھڑا ہوں, یہ دیکھیں کہ ہم نے 3-4 ماہ سے اس کی محنت کر رہے ہیں.
स्ट्रॉबेरी है, इसमें जो है ना बहुत मेहनत की है, ज़ोर शोर से। आप फसल देखें, माशाल्लाह फसल बड़ी अच्छी है। ये हमारा सारा माल जो है ना बाहर की तरफ जा रहा है। दिल की शक्ल वाली खुशनुमा और जायकेदार फल स्ट्रॉबेरी जहाँ इंसानी जिस्म के लिए मुफीद है, वहीं पर काश्तकार हजरात के लिए मुनाफा बख्श कारोबार भी है। कैमरा टीम के हमरा शेख फैसल फराज, 5 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। रमजान सहूलत बाजार उकाड़ा में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी चीनी 5 किलो के बजाय 1 किलो देने पर फट पड़े। शहरियों का कहना है कि 1 किलो चीनी के लिए सहूलत बाजार आने से बेहतर है कि वो बाजार से खरीदारी कर ले। देखते हैं उकाड़ा से गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में कायम किए गए रमजान सहूलत बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाली खवातीन और मर्द कीमतों में मार्केट से बराए नाम रेट कम होने पर मायूस दिखाई देते हैं। चीनी के स्टॉल पर लाइनें हुकूमत के ऐलान करदा फी शनाख्ती कार्ड 5 किलो चीनी देने के बजाय 1 किलो चीनी तकसीम की जा रही है। नवाज ने ये तो कहा था कि 2 किलो चीनी वैसे मिलेगी लाइन में लगकर और शनाख्ती कार्ड में 5 किलो मिलेगी, और लेकिन कुछ नहीं मिल रहा, लाइन में जलील हो रही है। तो इतनी आवाम खड़ी है, इतनी मुश्किल से घर से आए हैं सिर्फ 1 किलो चीनी के लिए। इनको कम से कम चाहिए जो इन्होंने अनाउंस किया है वो उसके हिसाब से हमें 5 किलो चीनी दें। सहूल में आने वाली शायरी कहते हैं अगर लाइनों में लगाकर 1 किलो चीनी के लिए घंटों जलील ही होना है तो बेहतर है कि चीनी और दीगर एशिया बाजार से ही खरीद कर ली जाए। जिली इंतजामिया को अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए नजरसानी करनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि 8 लाख की आबादी वाले उकाड़ा शहर में एक ही रमजान सहूलत बाजार लगाया गया है जो शहरियों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। इससे कबल 3 बाजार लगाए जाते थे, यहाँ से बासानी खरीदारी की जाती थी। गुलाम मुस्तफा चौधरी, 5 न्यूज़, उकाड़ा। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से माह रमजान में सर रफ्तार में मयारी खुराक की फराहमी के लिए क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में 190 से जायद पॉइंट्स की चेकिंग की। 3,50,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए। फैसलाबाद पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से रमजान मुबारक में मुसलसल चेकिंग के लिए टीमें 3 शिफ्टों में काम कर रही हैं। कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 1 यूनिट की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। नाकिस इंतजाम पर 24 को 3,24,000 से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। भारी मिकदार में गैर मयारी मिलावटी और एक्सपायर्ड अशिया तल्फ करके 121 पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी किए गए। सर रफ्तार के औकात पॉइंट्स की चेकिंग के साथ मशरूबात, बेसन, मसाला जात, समोसा, रोल पट्टी, केचप, मेयोनीज, पकौड़ियाँ यूनिट्स की सख्त चेकिंग की जा रही है। जैकबाबाद में माह रमजान मुबारक में जब तक दस्तरख्वां पर समोसे, पकौड़े, रोल्स और चटपटे खाने ना हो इफ्तार का मजा नहीं आता। मज़ीद जानते हैं जाहिद गाजी से जो बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समोसों की स्टॉल पर मौजूद हूँ। माह रमज़ान में जब तक दस्तरखान पर समोसे, कचौड़ियाँ ना हो तो दिल दुबाला नहीं होता। इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ यहाँ पर खासा शहरियों का रश नज़र आ रहा है। लोग शाम होते ही जब अफ्तारी का वक्त तो करीब आता है तो इस स्टॉलों की तरफ जो है वो रुजू करते हैं और अपने घर के लिए यहाँ से समोसे और कचौड़ियाँ लेकर जाते हैं। शहरियों से जानते हैं कि उनका सूरत हाल में क्या कहना है। आप हमें ये बताएं कि क्या लेने आए यहाँ पर आप? समोसे, रोल जो यहाँ पे बहुत मशहूर हैं, आजकल बहुत नाम चल रहा है, तो उससे समोसे रोल वगैरह लेने आए। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन है, टेस्ट में भी बहुत बेहतर है। और फ्रूट चाट वगैरह, इनकी छोला चाट वगैरह बहुत बेहतरीन है। कचौरी वगैरह, जलेबी माशाल्लाह बहुत टेस्टी हैं, वही लेने आए। ये बड़े ज़ौक़ और शौक़ से लेते हैं और ये दस्तरखान की जो एक बहार है ऐसे समझें। तो आप देख रहे हैं खुद माशाल्लाह से लोग इन चीज़ों को लाइक करते हैं कि आएँ और जो है यहाँ से जो है फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं, जैसा कि कचौरी है, चिकन रोल हैं, बारबेक्यू रोल हैं, टिक्का समोसा रोल है। आवाम की खिदमत यहाँ पे की जा रही है माशाल्लाह से। बड़ा अच्छा जो है सेटअप है और लोग आप खुद देख रहे हैं यहाँ से बड़े ज़ौक़ शौक़ से जो है ना सामान लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों और दुकानदारों की आपने बातें सुनी। उनका कहना है कि जो अफ्तार करने वाले शहरी हैं उनके लिए सहूलत मुहैया करने के लिए अच्छी और खालिश जो चीज़ें हैं वो तैयार की जाती हैं, जहाँ पर समोसे, कचौड़ियाँ लोग बड़ी दिलचस्पी के साथ खरीदते हैं। जी फैसलाबाद में रमजान मुबारक के दौरान इत्र की मांग में इजाफा हो गया। शहरी इत्र की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करने लगे। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदा आफ्ताब नवाज की रिपोर्ट।
रमजान जहां बरकतों का महीना है, वहीं खुशबुएं बखेरने का महीना भी समझा जाता है। रमजान अल मुबारक में खुशबू लगाकर मसाजिद में नमाज की अदायगी का रुझान बढ़ जाता है, इसलिए माह सयाम के दौरान इत्र की मांग में भी इजाफा हो जाता है। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ शुरू हो गया है, ये पहला अशरा है। यहाँ से मैं हर साल अतर खरीद के ले जाता हूँ। अतर लगाना सुन्नत नबवी है। मस्जिद में जाते हैं, दोस्तों को भी लगाते हैं और ये अतर गिफ्ट भी करते हैं। इस्लाम में इत्र को रूहानी अहमियत हासिल है। इत्र लगाने से जहाँ ज़ाहिरी तौर पर जिस्म मुअत्तर हो जाता है, तो वहीं खुशबू से रूह को ताजगी भी मिलती है। रमजान अल मुबारक के मौका पर इत्र का इस्तेमाल और भी खास हो जाता है। नमाज जब पढ़ने जाएं, ठीक है, सबको अच्छा लगता है कि खुशबू लगी हो, अपने जिस्म से खुशबू आए, तो ये नबी की सुन्नत भी पूरी होती है और इंसान को अच्छा भी फील होता है। घंटाघर के बाजारों में मुख्तलिफ नामों से इत्र की कई कदीमी दुकानें हैं, जहां पर हर किस्म का इत्र मिलता है। महंगाई जहां मुख्तलिफ सनतों पर असर अंदाज हुई है, वहीं इत्र के कारोबार को भी नुकसान पहुंचा है। ये खुशबू है बहुत कॉस्टली भी हो चुकी है, महंगाई भी बहुत है और साथ में जो है कस्टमर कम आ गए हैं। इत्र फरोश इस रमजान में पिछले सालों की निस्बत खरीदारों का रुझान कम होने का शिकवा कर रहे हैं। खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है। रमजान अल मुबारक के दौरान शहरी इत्र खरीदने में मसरूफ हो जाते हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकपतन में रमजान अल मुबारक के दौरान हुकूमत पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के मुस्तहिकीन में 10-10 हज़ार रुपये के पे ऑर्डर्स तकसीम किए जा रहे हैं। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के निगहबान रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में पे ऑर्डर्स की तकसीम जारी। प्रोग्राम के साथ जिला के 53,000 से जायद खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मैडम सीएम के इनिशिएटिव पे निगहबान कार्ड बांटे जा रहे हैं, जिसमें हर घराने को जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, उसके मुताबिक 10,000 रुपये का पे ऑर्डर दिया जा रहा है और पे ऑर्डर की फॉर्म में दिया जा रहा है, कैश कोई नहीं दिया जा रहा, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें। जिला पाकपतन में ऐसे 53,585 घराने आइडेंटिफाई हुए थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक कहती हैं कि म्यूनसिपल कमेटीज और यूनियन काउंसिल्स में आने वाले अफराद के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। मैं मरिया नवाज का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। रमजान पैकेज 10,000 रुपये सानू दिता गरीबां दा एहसास किया। माह सियाम में निगहबान रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकूम के ड्राफ्ट मिलने पर मुस्तहिक अफराद ने हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। रमजान मुबारक के मुकद्दस माह में गरीब अफराद को चेक फराहम करना हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। मुरीद के नारंग मंडी में सरकारी रमजान सहूलत बाजार ना लग सकी। बल्दिया में लगने वाले सस्ती चीनी का स्टॉल भी फॉल ना हो सका। हुकूमती दावे धरे रह गए। दूसरी तरफ अंजुमन ताजिरान सदर बाजार नारंग ने अपनी मददात के तहत सस्ता स्टॉल लगा लिया। तफसीलात के मुताबिक अंजुमन ताजिरान सदर बाजार नारंग की जानिब से लगाए गए सस्ता स्टॉल में फल, आटा, बेसन समेत सहरी और इफ्तारी के औकात में इस्तेमाल होने वाली अशिया बगैर मुनाफे के मुहैया की जा रही हैं। अहले इलाका ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये भारी टैक्सेस के बावजूद आम आदमी के लिए सहूलियात ना होने के बराबर है। रमजान अल मुबारक में हर साल गरीब खानदानों के लिए रिलीफ फराहम किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा कोई इक़दाम नहीं किए गए, जो लम्हा फिक्रिया है। फैसलाबाद के रमजान बाजार में हुकूमत की जानिब से सस्ती चीनी की फराहमी ना होने के बायस आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, बताएगा। जी, फैसलाबाद में हुकूमत की जानिब से शहरियों को रमज़ान बाज़ार में सस्ती चीनी फराहम करने के बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट के बावजूद चीनी के स्टॉल अभी तक खाली पड़े हैं और शहरी इंतहाई परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी बताइएगा, चीनी के स्टॉल अभी तक चीनी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? चीनी के स्टॉल आपके सामने खाली पड़े हुए हैं, एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। जो चीज़ें मिल रही हैं वो तकरीबन मार्केट के रेट के बराबर ही है। बाहर जो मसला आलू हो गया, प्याज हो गया, वो बाहर भी यही चीज़ें हैं, घी की कीमत भी वही है। चीनी में डिस्काउंट है लेकिन वो मिल नहीं रही, ऐसी रमज़ान गुजर जाना है। एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा की हुई है इन्होंने, लोग देख के आ रहे हैं रोज़े की हालत में, लेकिन जब आते हैं लोग थक जाते हैं। रोज़ा जो रखा हुआ है, आप देख रहे हैं ये सब होंठ वगैरह खुश्क हैं। हाँ जी बिल्कुल, चीनी के स्टॉल खाली होने की वजह से शहरी इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं और शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी।
जिला इंतजामिया चिन्योट की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल ने सस्ता रमजान सहूलत बाजार का विजिट किया। मजीद जान लेते हैं सस्ता रमजान बाजार में मौजूद अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मियां, बताइएगा क्या हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सस्ता रमज़ान कायम कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सस्ता रमज़ान बाजार में। यहाँ पर हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा, जिला भर में कितने सस्ता रमज़ान बाजार कायम किए गए हैं? बुनियादी तौर पर इस दफ़ा सिर्फ एक जो है वो सस्ता बाजार या रमज़ान सहूलत बाजार बेसिकली कायम किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी के तौर पर जितने डिजर्विंग लोग थे उनके घरों में जो रमज़ान की इमदाद है वो पहुँचाने का बंदोबस्त किया है, जिसके जो आज से जो है आपको पता है कि चेक्स की सूरत में और पे ड्राफ्ट की सूरत में उनके घरों में उनको वो जो रकम है वो मुहैया की जा रही है। ये जो एक बाजार यहाँ पर जो है ज़िले में कायम किया गया है कि अगर कोई लोग यहाँ से सस्ती खरीदारी करना चाहें, इसमें फ्रूट है, वेजिटेबल है, गोश्त है, चीनी है, और वो बाजार से जो है कम रेट पर यहाँ पर अवेलेबल की गई है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है वो लोगों को जो है पे ऑर्डर्स की सूरत में उनके घरों में पहुँचाया गया है ताकि वो सहूलत के साथ खरीदारी कर सकें। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की बात सुनी, उनका कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जिला चिन्योट में सब्सिडी फराहम की जा रही है। लोगों से उन्होंने अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता रमज़ान बाजार से खरीदारी करें और पंजाब गवर्नमेंट की सब्सिडी से फ़ायदा उठाएं। जी, कसूर में रमज़ान मुबारक की बरकतें बांटने के लिए लीलानी अड्डा चौक में शानदार सहरी का एहतमाम किया जा रहा है, जहां हज़ारों रोज़ेदार 100 रुपये में बकरे का गोश्त, चने, खोए वाला हलवा और पराठे से सहरी करते हैं। इस हवाले से देखते हैं कसूर से सजाद अंसारी की रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए कसूर ललियानी अड्डा चौक में हर साल की तरह इस साल भी एक शानदार और मुनफरिद सहरी का रोजाना की बुनियाद पर एहतमाम किया जाता है, जहां शहरियों को 100 रुपए में भरपूर और लजीज सहरी फ्राहम की जाती है, जिसमें बकरे का गोश्त, चने, खोए वाला हलवा और पराठे शामिल हैं। इस हवाले से मुंतजमीन और शहरियों का बात करते हुए कहना था कि हर साल हम ये करते हैं जी सहरी का और अफ्तारी का, और इसमें ये 100 रुपए में हम मटन का सालन होता है, इसमें एक रोटी और पराठा और साथ खोए का हलवा होता है, तो इसमें ये हम 100 रुपये में इसको हम देते हैं। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग आए, जो खिदमत खल्क कर गया वही नामर हुआ, नाम उसी का जिंदा रह गया जिसने गरीब को गले से लगाया और अल्लाह के महलूक के लिए आसानियाँ पैदा कर दी। यहाँ पे गरीब आवाम एक वक्त का खाना नहीं पका सकते, उनके लिए सहरी का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया है कि डेली जो है इन्हें मटन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं, कीमा मटर वगैरह ऐसी चीज़ें डेली चेंज कर करके दे रहे हैं। महंगाई के इस दौर में मर्द व खवातीन का सहरी की सहूलत फराहम करने के इस इकदाम को खूब सराहा। ये खूबसूरत जज्बा रमजानुल मुबारक की असल रूह की अक्कासी करता है, जहाँ हर कोई बरकतें बांटने और खुशियाँ तकसीम करने के लिए कोशा है। मुबारक की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए शानदार सहरी का इंतज़ाम एक अहसन इकदाम है। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आवाम को रिलीफ की फराहमी के नजरिए से सरगोदा में रमजान सहूलत मॉडल बाजार कायम कर दिए गए, जहाँ आटा, चीनी और चिकन समेत दीगर अशिया ज़रूरिया रियायती नरखों पर दस्तियाब हैं और लोग भरपूर अंदाज में मुस्तफीद हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अशरफ नवीद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर माह सियाम में सारफीन को रिलीफ फ्राहम करने के लिए 2 रमजान सहूलत मॉडल बाजार, 5 रमजान सहूलत बाजार और 23 चीनी सेल पॉइंट कायम किए गए हैं, जहां होलसेल रेट पर अशियाए खुर्दोनोश की फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है। इसी तरह सेल पॉइंट पर शुगर मिल्स की जानिब से 130 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। सरगोदा में यूनिवर्सिटी रोड और सर्कुलर रोड भेरा पर रमजान मॉडल बाजार बनाए गए हैं, जहाँ मुर्गी का गोश्त, अंडे, चीनी, आटा समेत 16 जरूरिया रवायती नरखों पर दस्तियाब हैं। इसी तरह जिला सरगोदा की तहसील बलवाल, साहिवाल, सिलावाली, कोट मोहम्मद और शाहपुर में 5 रमजान सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से आवाम को बाजार से कम नरखों पर अशिया जरूरिया की फ्राहमी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम तो की गई हैं, लेकिन शहरियों का कुछ और ही कहना है। यहाँ पे और आम बाजार में कोई इतना खास रेट्स का फर्क नहीं है। अगर हुकूमत चाहती है रमजान बाजार, एक्चुअली वो चाहती है कि लोगों को अच्छी कीमत पे चीजें मिले, तो उन्हें चाहिए कि वो प्रोवाइड भी करें। फिर एक तो जो चीजें है ना, मतलब सेब बाहर भी तकरीबन 300 रुपए किलो है, इधर भी 300 रुपए किलो है,
केला भी तकरीबन 150-200 है, इधर 178 रुपये है। इन बाजारों में सीनियर सिटीजन्स के अलग काउंटर्स भी कायम किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी अमली इक़दाम किए गए हैं ताकि आवाम को हकीकी सहूलियात मुयसर आ सकें। हुकूमत पंजाब की जानिब से मॉडल सहूलत रमज़ान बाज़ार का इनेकाद आवाम के लिए हकीकी मानों में